نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ اس دل پہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. یہ دل دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے, یہ دل دنیا کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے, یہ دل دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے. ابھی اس کو یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی کوئی بھی, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر اس دن کیا کہے گا بندہ, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اب ذرا سبحان اللہ نہ کہنے کا نقصان سنو. اللہ 33 بار کہنا تھا, ایک بار نہ کہنے کا نقصان سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے, صحابہ حاضر خدمت تھے, اور کسی نے کیا خوبصورت منظر کشی کی. لکھنے والا لکھتا ہے, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابہ, کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. ٹھیک ہے جی, یہ 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی. اس کا وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس پہاڑ کا وزن کتنا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن حضرت یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اللہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں, یہاں صرف ایک چوٹی احد شریف ہی نہیں ہے, بڑی بڑی بلند و بالا چوٹی ہیں. ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی بہت زیادہ ہے حضرت, آسمان کو چھو رہا ہے. وہ K2 سے تھوڑا چھوٹا ہے. پھر اس کے بعد نانگا پربت ہے, سلسلہ کوہ ہے. ہمارے اپنے سیالکوٹ میں, اپنے پاکستان میں بڑی بڑی بلند چوٹی ہیں, بڑی بڑی بہت بڑی بڑی چوٹی ہیں حضرت. یہ نانگا پربت اور K2 کے بعد جیسے مری ہے 7,000 فٹ تو میرے خیال اس کی بلندی ہے. اسی طرح حضرت جی بابو سر ٹاپ جو چوٹی ہے 13,000 کچھ سو فٹ اس کی بلندی ہے حضرت. اس طرح حضرت وہ کیا نام ہے, پیر چناسی ہے, اس طرح ایوبیہ ہے. یہ وہ چوٹیاں ہیں جس پہ آپ اکثر و بیشتر جاتے ہو گھومنے کے لیے. لیکن اتنی بلند چوٹیاں, اتنے بڑے پہاڑ ہونے کے باوجود ان پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن قربان جاؤں, احد شریف کے لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے احد کو جنت میں شامل کیا جائے گا. یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے. صحابہ حاضر خدمت تھے, فرمایا میرے صحابہ, کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. صحابہ نے عرض کی, اللہ کے محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے, کون اس کی طاقت رکھتا ہے. فرمایا میرے صحابہ, تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. اس کی محبوب وہ کیسے. فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں کہا, کیا کہا, زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا, 33 بار. ایک بار کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. یہ میں ایک بار کا ثواب بتا رہا ہوں. اور فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا, 33 بار. اللہ الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہمارا. لیکن توجہ ہی نہیں حضرت اس نقصان, دنیا کی طرف ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. اور توجہ نہیں, پاگل ہو گئے ہیں حضرت. بھائی مارنا پڑے مارنے کو تیار ہیں, بہن چھوڑنی پڑے چھوڑنے کو تیار ہیں. نہیں حضرت, اس جانب توجہ کرو یار. اتھے عملہ دے ہونے جے نہ بیڑے, کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں, عمل پوچھے جائیں گے. لیکن اس لیے تو اقبال نے روک کے کہا تھا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. توجہ کریں حضرت, اس جانب توجہ کریں.
اور خوب اپنے اللہ کو یاد کرنا، خوب اپنے اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، کمال یاد کر کے مثنوی۔ لیکن حضرت جی ہمارا کہاں کتابوں سے تعلق رہا ہے، ہم نے تو کتابیں چھوڑ دی، بلکہ کتابیں چھوڑو، جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہم نے چھوڑ دیا حضرت، کوئی نہیں حضرت جی قرآن پاک، آپ نے نہیں ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ آج اسٹیج پہ کتنا قرآن پڑھا گیا حضرت، وہ بس ابتدا میں جو قاری صاحب نے تلاوت کی سو کی، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نقیب صاحب قرآن نہ خطیب صاحب قرآن حضرت۔ اور وہ جو تلاوت ہے، جیسے ہمارے اسٹیجوں سے حمد گئی نا، اب دیکھیے گا اللہ نہ کرے وہ برا وقت آئے، مجھے ایسے تلاوت بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے، جیسے حمد گئی نا ہماری اسٹیجوں سے سارے نے ایک ایک ماگلے ہے بس لگے دل، مجھے یہ بھی جاتی ہے کیونکہ ہم نے حضرت جی قرآن اور قرآن والوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا۔ یہاں تو ہم پروموٹ کرتے نا، جیسے ہم نے نعت خوانی کو پروموٹ کیا، ایسے ہم حضرت قرآن کو پروموٹ کرتے۔ مدرسوں والے بیچارے ترلے ڈال رہے ہیں جی مدرسے چل نہیں رہے، امداد کریں، توجہ کریں۔ پھر کون بنائے اپنے بچے کو عالم؟ آپ نے پروموٹ ہی نعت خوانی کی ہے، نعت خان جناب تیار ہو رہے ہیں، دوا تیار ہو رہے ہیں، قرآن ہم نے پروموٹ ہی نہیں۔ بس شروع میں اللہ حضرت جی یہ یاد رکھیے، فرمان مبارک کا مفہوم ہے سب مجلسوں میں بہترین مجلس وہ ہے جس مجلس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے، بس ابتدا میں رسمن وہ قاری صاحب قرآن تلاوت کر دے، باقی ان قرآن بس دے نعت خوانی دے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا ایک تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی۔ قرآن آپ نے کیا، ہم مولویوں نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا، تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہمیں پوچھا جائے گا نا۔ اور میرے نام پہ کھانے والوں کیوں نکالا اپنے اسٹیجوں سے تم نے قرآن؟ سوئے مرے پڑے تھے سارے، کیوں صرف ایک تلاوت ہوئی؟ 10 نعت خواں بلائے گئے، کیوں 7 10 قاری بھی نہیں بلائے گئے؟ تم نے علماء نے نہیں کلام اللہ کی طرف توجہ دی، تم علماء نے نہیں کلام اللہ سے پیار کیا۔ اور حضور نبی علیہ السلام کو کتنا پیار قرآن پاک سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں وہ نام ہے جو قرآن کریم بڑے اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ باقی تو ہر صحابی کا قرآن کا کیا کہنا ہے جناب، صدیق اکبر کی تلاوت پہ میں قربان، جناب عمر فاروق کے قرآن کا کیا کہنا، جناب عثمان غنی کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب مولا مشکل کشا کی تلاوت کا کیا کہنا، اور اس تلاوت پہ تو سارا کچھ ہی قربان جو میرے امام نے نیزے پہ کی تھی۔ امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، اور امام نیزے پہ بھی قرآن کرے، اور محفل ہو امام حسین کے نام کی اور صرف ایک تلاوت کی جائے، محفل ہو امام حسین کے نام کی اور تلاوت بس شروع میں ایک۔ تم چھوڑو یار، ہم نے تمہاری بات تو بعد میں کریں گے نا، پہلے اپنی بات کر لیں۔ تم تو گئے، ہم نے نکال دی، بولتے ہی کوئی تو بھائی کیوں 10 نعت، ہاں 10 قاری کیوں نہیں، کیوں 10 نعتیں، 10 تلاوتیں کیوں نہیں؟ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جو تو نعت پڑھ رہے ہمیں انکار نہیں، لیکن اس نعت کے لکھنے والا کوئی بندہ ہے، اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے۔ آج بندے کے کلام کو اللہ کے کلام پہ فوقیت، اللہ کا کلام شروع میں ایک بار رسمن بات، پھر چلو بس ختم کرو۔ کیا کریں یار، آپ کی چھوڑو، ہمارا حال خراب ہے۔ خدا کا واسطہ توجہ دو اس جانب، قوم تو آگے قرآن کو اپنی محافل کے ذریعے لوگوں کو پیغام دو یار، لوگ تو آگے قرآن چھوڑ چکے ہیں، اور اگر ہم نے بھی محفلوں سے قرآن نکال دیا تو قرآن کون پڑھے گا حضرت؟ وہ خدا کا نام لو، کو توجہ کرو محفلوں والوں اس جانب۔
ये अगर आए हैं इनको को पैगाम दे के भेजो। अगर स्टेज पे कुरान कोई नहीं तो ये किधर कुरान खोलेंगे? अगर मौलवियों ने कुरान छोड़ दिया तो ये कुरान कब पढ़ेंगे? तवज्जो करो यार, एक तिलावत, एक गाली, फिर एक नाम है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मस्जिद नबवी शरीफ में तिलावत फरमा रहे थे बैठ के, रुख किबला की जानिब। नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। अब हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके हैं और मेरी तिलावत सुन रहे हैं। ये कुरान पढ़ रहे हैं। जब ये तिलावत खत्म करके उठे ना तो देखते क्या है, पीछे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खड़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू मूसा तूने बड़ा सोना कुरान पढ़ा। अबू मूसा तूने बड़ा सोना कुरान पढ़ा। अब जरा हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। अर्ज करते हैं, अल्लाह के महबूब आप मेरा कुरान सुन रहे थे? फरमाया, हाँ अबू मूसा मैं तेरा कुरान सुन रहा था। अर्ज करते हैं, महबूब अगर मुझे पता होता ना आप सुन रहे हैं मैंने और सोना करके पढ़ना था। अगर मुझे पता होता मैंने और सोना करके। आज मेरी स्टेजों पे कुरान ही कोई। पहले कहते सन डॉक्टर सुलेमान नासबी हो गया, हूं कहणगे डॉक्टर सुलेमान भाभी हो गए। हुणे ही पता लगना मेरे अगे नासबी कीता ही, हुण भाभी करनगे मैनूं। लेकिन तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, हम तो हक बात करें। गुस्सा लगता है 1000 बार लगे, या हम तुम्हारे गुस्सों की परवाह करके बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। दुख है हजरत, कुरान कोई नहीं स्टेज बस शुरू च हजरत। और कारी साहब भी हजरत जी कुरान उदू पढ़ते हैं सामने सुनने वाला होंदा ही कोई नहीं हजरत। माहौल की इब्तिदा में पढ़ते हैं हजरत, होता ही कोई। उतो हजरत जी अल्लाह हिदायत दे, रह गए मिस्र वाले कारी साडे कोल आंदे ने जांदे हजरत जी मुश्कड़ी भरते ने ते मिस्र जांदे ने, अपने बेचारे फिर साडे भुखे दे भुखे ही हजरत। अजीब तमाशा लगा हजरत, मैनूं तो नहीं। वो आते हैं हजरत जी मिस्र से, वो जांदे हजरत जी तोड़े भरते ने, ओ गए जी अपने नूं पुछदा ही कोई नहीं। जी मिस्र से कारी आए हुए तो मैं कि मेरे कारियों की लूले लगने। कुरान लाओ अपनी स्टेजों पे, खुदा का वास्ता हाजिर कुरान लाओ। अगर स्टेजों पे कुरान नहीं पढ़ा जाएगा तो ये किधर पढ़ेंगे यार? हमने ही तो उनको पढ़ के बताना है कि कुरान क्या है। फिर कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा करीम अला नबी जन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो सहाबी हाज़िर खिदमत थे। फरमाया मेरे सहाबी मुझे कुरान सुना। सहाबी मुझे सहाबी आगे सर्च करते, महबूब कुरान तो वो है जो आपके कल्ब मुबारक पे उतरा है, हमने कुरान पाक आपसे सीखा है, मैं आपको कैसे कुरान सुना सकता हूँ? जरा सुनना मेरे महबूब को कितना प्यार था कुरान से हजरत। फरमाया मेरे सहाबी कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। दुख है हजरत, आज हमारी स्टेजों पे रब का कलाम कोई नहीं। आज हमारी स्टेजों पे कोई रब का दे नात भाई अल्लाह माफ करे, हमको नात खाने के तरीका है भाई। फरमाया मजलिसों में सबसे बेहतरीन मजलिस वो है इसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो। मजलिस में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा जाए, सिर्फ सुनाया जाएगा। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा हजरत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? फरमाया 14 साल अब्दुल कादिर ने हर रात एक टाइम पे खड़े होके एक कुरान पढ़ा है। वो हमारे बड़े कुरान वाले थे, इमाम अबू हनीफा कुरान वाले, इमाम मालिक कुरान वाले, इमाम शाफई कुरान वाले, इमाम अहमद बिन हंबल कुरान वाले, गौसे आजम कुरान वाले, शाह नक्शबंद कुरान वाले, ख्वाजा गरीब नवाज कुरान वाले, बाबा फरीद कुरान वाले, बाबा फरीद कुरान वाले। और मैं कह रहा हूं हजरत ये वक्त जा रहा है हाथ में। इसी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जब विसाल हुआ ना, किसी मुरीद ने ख्वाब में देखा आपको। देखता क्या है, हजरत एक बड़े खूबसूरत तख्त पे बैठे हुए हैं जिसम पे जन्नती लिबास है, जन्नती खुद्दाम है, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। उसने अर्ज की हजरत क्या क्या अंदाज है, क्या शान है। आपने फरमाया यार ये नहीं मजा उधर ही सी। उनके हजरत उधर क्या मजा? फरमाया वो जो सुबह उठ के नींद छोड़ के गर्म बिस्तर छोड़ के जब ठंडे पानी से वुजू करके मैं रब के हुजूर खड़ा होता था, वो मजा इधर नहीं है।
ले लो बेटा मजा, ये वक्त जा रहा है, नहीं रुकना कोई भी है, आपके और मेरे लिए नहीं रुकना बेटा, मजा ले लो इस वक्त का, जा रहा है, ले लो पग का मजा, ले लो दाढ़ी शरीफ का मजा, जा रहा है वक्त, ले लो मजा, ले लो, ये नहीं वक्त रुकेगा। ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये डायरेक्ट मुरीद हैं हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, डायरेक्ट फैज पाया आपसे, सहाबा को देखा, और सिर्फ सहाबा को नहीं पदरी सहाबा को देखा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक गोद में बैठने का शर्फ मिला, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक प्याले से पानी पिया इन्होंने, इतने जलीलुल कदर ताबई हैं। वो लिखा है कि इमाम साहब ना फजर की नमाज पढ़ के घर तशरीफ ले जा रहे थे, एक नौजवान भागता हुआ हजरत फजर की अदायगी के लिए आ रहा था, इमाम साहब की और उसकी आपस में मुलाकात हजरत वो मस्जिद के दरवाजे पे हुई। अब इमाम साहब का मस्जिद पे दरवाजे पे मिलना इस बात की वाज़ेह दलील है कि जमात हो चुकी है, लेकिन इस कदर शौक जमात में शामिल होने का, इस कदर शौक जमात को पा लेने का, हजरत इमाम साहब को दरवाजे पे देख के भी उसको समझ नहीं आई कि जमात हो गई है। इमाम साहब को देख के पूछता है हजरत जमात हो गई? आपने फरमाया वो तो कब की हो गई। जमात रह जाने के गम में अंदर से एक आह निकली, कहता हाय आज मेरी फजर की जमात रह गई। सच बताना पुत्र, है हमारे पास ये आह? कोई नहीं। जमात छोड़ो, नमाज रह जाए तो आह कोई नहीं, जमात नमाज रह जाए तो आह कोई नहीं। इस कदर गफलत, इस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूरी, जमात नमाज छूट जाए तो आह कोई नहीं। हजरत अंदर से आह निकल गया था, हाय आज मेरी फजर की जमात रह गई। इमाम साहब देख रहे, फरमाया इतना दुख है तुझे? और करता हजरत इतना दुख है तो आह निकली है ना, ऐवी तो नहीं निकली। आपको क्या बताऊं कितना दुख है, इतना दुख है रहा नहीं, आह निकली मेरे अंदर से। फरमाया मैंने जमात से पढ़ी है, तकबीर उला के साथ पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे खड़े होके पढ़ी है, चल फिर मुझसे सौदा कर ले। उसने कहा हजरत वो क्या? फरमाया मैं अपनी जमात का सवाब तुझे देता हूं, तू अपनी आह मुझे दे दे। उसने अर्ज की हजरत हो सकता है ऐसे? फरमाया अगर तू तैयार है तो हो सकता है। उसने कहा हजरत मैं तैयार हूं। फरमाया मैंने अपनी जमात का सवाब तुझे दिया। और अर्ज करता हजरत मैंने अपनी आह आपको दी। हजरत घर तशरीफ ले गए, वो मस्जिद में आ गया, उसने आकर अपनी फजर अदा की। दिन गुजरा जैसे भी गुजरा, जब रात को अपनी चारपाई पर लेटा ना, तो ख्वाब में क्या देखता है, कोई कहने वाला कह रहा है ओए बंदे ये क्या कर दिया, इतना घाटे का सौदा कर आया। वो जो जमात रह जाने के दुख में तेरे अंदर से आह निकली थी ना, वो आह तेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई कि तेरे अल्लाह ने तुझे 200 रकअतें अदा करने का सवाब दिया। 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया। साथ ही आंख खुल गई। अब हो कुछ नहीं सकता था, वक्त गुजर चुका था। उसने कहा चलो सुबह फजर में जाकर ना ट्राई मारता हूं, अगर इमाम साहब मान गए तो सौदा वापस करवा लेता हूं। रात उसने जैसे तैसे गुजारी, सुबह पहुंच गया मस्जिद में, फजर इमाम साहब के साथ ही पढ़ी। फजर पढ़ के ना इमाम साहब की बारगाह में हाजिर हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हजरत याद है पहचाना? फरमाया हाँ तू कल वाला ही बंदा है जिससे सौदा हुआ था। उसने कहा हजरत बस सौदे के हवाले से हाजिर हुआ हूँ। फरमाया क्या सौदा कैंसिल करवाना है? फरमाया क्यों? हजरत आप अपनी जमात का सवाब वापस ले लें और मेरी आह मुझे दे दे। इमाम साहब ने आगे से फरमाया ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा। ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। हाँ लेकिन पुत्र हमारी आह खो गई, कोई हमारे पास आह उठ नहीं रही है, खो गई हमारी आह। मैं इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, वो चले हो अपनी आह लबो की तू जाके अपनी आह ढूंढो, कहीं मांगो, रो रो के उससे वो आह वापस। आज अगर किसी के मुंह पे दाढ़ी नहीं है उसको कोई दुख नहीं इस बात का, अगर आज किसी के सर पे टोपी नहीं है उसको कोई दुख नहीं इस बात का, अगर आज किसी की नमाज छूट रही है उसको कोई दुख नहीं इस बात का, कोई दुख ही नहीं है। और कमाल हजरत बयान किया इसको मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने मसनवी शरीफ में। अब फरमाते कोई बादशाह था,
اپنی شاہی باغیچے میں بیٹھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سامنے انواع و اقسام کے میوے پڑے ہوئے تھے، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ بادشاہ کو دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوچی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بادشاہ کے سامنے بولتا کہ بادشاہ کو شرم کرے. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے بابے کا شغل دکھاؤ. کون بولے؟ کوئی نہیں. جیسے ہم سارے فیس بک کے شیر، ہم سارے فیس بک کے شیر، فیس بک پہ بڑھ کے مارتے ہیں، ویسے کچھ فیس بک پہ بڑا کر دیں گے ویسے کچھ. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک کا دیوالیہ ہونے کو. دیوالیہ تو خیر نہیں ہوگا انشاءاللہ کبھی بھی، کیونکہ جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سایہ خدائے ذوالجلال. اس کا نہیں ہوگا کبھی بیٹا. یہ پاکستان ہے انشاءاللہ. جتنے مرضی دنیا کے نقشے بدلیں، نہ انشاءاللہ کبھی مدینے کو کچھ ہوگا اور نہ کبھی پاکستان کو کچھ ہوگا. یہ دو ہی تو شہر ہیں بیٹا جن کی بنیاد صرف اسلام ہے. دو ہی تو شہر ہے آپ کی تاریخ میں. باقی کو افغانستان کو بنگلہ دیش کو ترکمانستان کو ازبکستان کو قزاقستان کو فلانستان کو فلانستان کوئی فلانستان. دو ہی مدینہ پاکستان، دو ہی حضرت جی بس. بڑے بڑے حالات آئے، میں نہیں، اللہ کی ذات بہتر جانی. کتنے آئیں گے لگے گا جی ہوں ایدا کھ نہیں جے رہا، لیکن انشاءاللہ ایدا کھ نہیں ایدا سارا کچھ ہی رہنا ہے. اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بڑے بڑے نقشے حضرت جی وہ گوگل پہ ڈالے گئے. 2013 میں پاکستان میں بلوچستان نہیں ہوگا، 2017 میں جناب سندھ نہیں ہوگا، تو 2019 میں وہ نہیں. تو ماما لگتا ہے. اور یاد رکھو پاکستان وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ وہ درخت ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے، اور جس کو محمد اور علی لگائے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس کا راکھا محمد ہوں، جس کے راکھے علی ہوں، جس کو جماعت علی بنائے، جس کو میر علی بنائے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. جو کرنا کرو. میں اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں اور جو کسی دا چاہ رہ گیا پاکستان نو لٹن تے کھان دا، اور تو بھی چاہ پورا کر لے اپنا، ہونا اینو کھ نہیں. اگر کوئی رہتا نا، اور حکمرانوں اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو نوچنے کا، اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو کھانے کا، اور وہ بھی پورا کر لو. سارے اپنے اپنے چاہ پورے کرو. یہ ہے، یہ رہے گا، یہ رہے گا. جس کا کوئی چاہ ہے وہ بھی پورا کرے. کوئی رہ نہ جائے تم میں سے جس کی پلیتی کھل کے ہمارے سامنے نہ آ جائے، جس کو اللہ ننگا نہ کر دے. اگر رہتا ہے نا کسی کا چاہ، جاؤ پورا کر لو. اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال. اللہ کیلوں نے بڑی بری ہے اس کے ساتھ حضرت. لیکن پتر ایک میری بات یاد رکھنا، میری عادت نہیں ہے ڈنڈیاں مارنے کی. جتنی بری انہوں نے کی ہے اتنی بری ہم نے بھی کی ہے. بعض آپ میں اور مجھ میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے. جس کو موقع ملا ہے سارے نے ڈالا ہے. صرف بدنام ہو گئے، صرف نہیں تو واقعتاً بدنام ہوئے، لیکن بعض آپ میں اور مجھ میں بھی کوئی نہیں. جس کو موقع ملا ہے نا، یہ کیمیکل والا درود نواز شریف بیچ رہا ہے، آ کے کتوں کا گوشت زرداری کھلا رہا ہے، مرچ میں بورا کون ڈال رہا ہے؟ بلاول ڈال رہا ہے. یہ وہ ٹھیک نہیں تے اڈے حاجی اسی بھی کوئی برابر کے شریک ہیں. اتھے انہوں نے لٹیا، ایتھے اسی لٹیا، لیکن بچیا کیا ہوں میں؟ سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال. میں حضرت وہ جب ہمارا بچپن تھا نا، اب تو بدل ہی گیا حضرت. تو 14 اگست کو نا وہ اسکول میں حضرت وہ تقریب ہوتی تھی حضرت، جس میں حضرت وہ تقاریر ہونی پاکستان کے حوالے سے. تو میں
स्कूल में पढ़ता था हर साल एक तराना, तो मुझ गुनाहगार का तो नहीं कबूल होना, लेकिन पक्की बात है किसी न किसी का कबूल हो जरूर गया हुआ है। और वो क्या था? सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आवा, कदम कदम आवा, तुझे कदम कदम आ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਇਆ, लेकिन खड़ा इसलिए है क्योंकि ये वो पौधा है जो मोहम्मद और अली ने लगाया है। खड़ा इसलिए है मोहम्मद और, क्योंकि हमने बुजुर्गों से सुना है कि 65 की जंग लगी है, तो जो मौजा शरीफ में खादिम थे गनूद की तारी हुई, 600 टैंकों का हमला, छोटा हमला है, 600 टैंकों का, और वो भी सोते में। और इतना उन पेशाब पीने वालों को खुद पे कॉन्फिडेंस था, वो कह के आए कि जो है ना नाश्ता लाहौर करना है। वो 600 टैंकों का हमला रात को सोते में हो, तो वो ठीक थे अपनी जगह, लेकिन उनको नहीं था ना पता साया खुदा जुल जलाल। उनको नहीं था पता, उनको नहीं था पता कि साया खुदा जुल जलाल। 600 टैंकों का कुर्बान जाऊं जी मेरी आर्मी पे। और हमेशा बेटा एक बात याद रखना, वो पीछे भी क्लिप था, तो मुझे दोस्त कहने लगे भाई साहब लगता को प्लाट ले लिया तुसी भी आर्मी को। सरकार असी नहीं आने दे कि असी आर्मी को लईए, असी चोली उत्थे ही फैलाई है। मेरा कल भी घर किराए का था, मेरा अभी भी किराए का ही है। लेकिन जो भाई अल्लाह ने अगर इज्जत दी है, मेरा काम है। ठीक है बेटा, मैं नहीं कहूँगा कि आर्मी बिल्कुल ही ठीक है मामले, लेकिन बेटा बोलने से पहले एक बार जरा उनको भी याद रखना जो तेरे लिए इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं, वो भी तो आर्मी है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, गलतियां हुई हैं, गलतू हुए हैं हजरत, और कर रहे हैं अभी भी ये गलतू है, लेकिन बेटा सोचने से पहले ना इतना जरूर ख्याल रखना, वो भी आर्मी है जो इस वक्त तेरे लिए सियाचिन पे खड़े हैं। और पुत्र याद रखना, अगर वो ना हो तो जिस वक्त बंबई में बैठे ना वो इधर हो। फिर ये भी एक तरीका कार है मुल्क को कमजोर करने का, कि अवाम, मैं फिर कह रहा हूं अदर जी, गलत हैं, लेकिन भाई इतना भी तो देखो ना, आर्मी भी तो पाकिस्तानी अवाम की आर्मी है, ये भी तो बात याद रखो। इसलिए बेटा हमेशा, जैसे हम कहते हैं ना जी वो पीर गलत, इसका मतलब सारे पीर गलत नहीं, पीरों में पीर अजमल साहब भी तो है ना। पीरों में पीर इलियास कादरी साहब भी तो है ना। इसका ये नहीं, मतलब ये हमेशा ध्यान रखो, हर जगह कभी भी सारे गलत नहीं होते हैं। लड़े बेटा वजूद के साथ, बम बांध के ये टैंकों के नीचे, रोक ही नहीं सकता था, 600 टैंकों का हमला था, कैसे रोकते उसे? बम बांधे थल्ले उड़ा दिए पूरे का पूरा टैंक ही जी, इन्होंने बड़ी दलेरी से लड़े जी। लेकिन उधर क्या था, जो मुआजा शरीफ में खादिम खास थे, नींद का गलबा, आंखें बंद हुई, देखते क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़रा बंदी है, जंगी लिबास है, दस्ते मुबारक में तलवार है। वर्ष करते महबूब ये क्या? फरमाया मेरे पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया, मैं अपने पाकिस्तान की मदद को जा रहा हूं। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, और इंशाअल्लाह ये आबाद ही रहेगा। लेकिन बस इतना कहूंगा पुत्र, खुदा दा वास्ता जी, हदीस पाक का मफहूम है, मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जा, किन्नी होती है ना को डसिया जाना है खुदा दा ना हाथ जोड़ के भाई होश चाह जो यार। और हजरत जी इस दफा ये इलेक्शन होने लगे हैं, इस दफा तुम्हारे वोटों पे फैसला होना है पुत्र। इस दफा तुम लोगों ने गलत वोट डाला, पाकिस्तान का इतना नुकसान होगा कि तुम सोच नहीं सकते। खुदा का वास्ता इस दफा शामी के लिए वोट ना देना, इस दफा पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के लिए वोट देना। खुदा का वास्ता जे मैं गुरु श्याल को डुआ के बिरयानी खा रही हो, बिरयानी ली वोट ना दियो।
खुदा दा वास्ता जे मेरे को सियालकोट आके चाह का कप पी लियो मैं पिया देंगा। चाह वास्ते ना विकियो, शामी कबाब वास्ते ना विकियो, सीख कबाब वास्ते ना विकियो। और पाकिस्तान वालों, अगर इस तरह तुमने वोट गलत दिए तो फिर आगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। खुदा का वास्ता ऐसे मेरे थावल देख लो। इस दफा पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए वोट देना। कितनी बार इनको देखना तुमने यार, है कितनी बार इनको देखना तुमने। महबूब फरमाते हैं एक सुराग से मोमिन दूसरी बार नहीं डसा जाता। और 35-35 साल हो गए तुम इनसे अपने आप को डसवाते हुए। लोग कहां से कहां चले गए, हम अभी भी इधर किधर ही खड़े हैं। ये जो आपने ये फोन पकड़े हैं, ये एप्पल, ये सैमसंग, ये नोकिया, ये नहीं कि ये मेरे बच्चे बना नहीं सकते थे, इन मनहूसों ने बनाने नहीं दिए। ये नहीं कि मेरे ये बच्चे, मैं अक्सर पूछता हूं ना कि आपने क्या बनाया, इसका ये मतलब नहीं होता मैं आपकी इंसल्ट करता हूं। मेरा दुख है, मुझे पता है मेरे बच्चों, अल्लाह ने आपको इतनी सूझ दी है, आप उम्मत मोहम्मद हो, आप बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो हमारे। आप बना सकते थे टोयोटा, आप बना सकते थे होंडा, आप बना सकते थे किया, आप बना सकते थे एमजी, आप बना सकते थे मर्सिडीज, आप बना सकते थे लैम्बोर्गिनी, लेकिन इन मनहूसों ने बनाने नहीं दिया। जिस बच्चे ने कुछ नई चीज बनाई, बच्चा ही गायब। जिसने कुछ यूट्यूब पे नया करके दिखाया पाकिस्तान के लिए, बंदा ही गायब। वो एक हमारी बेचारी बच्ची, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उस बच्ची की कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। इरफा करीम हज़रत, आईटी की बच्ची थी हज़रत, पता नहीं मनहूसा ने की दिता, उठी नहीं हज़रत। मुझे पता है आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं वेखे देने हज़रत। अगर तुमने टोयोटा बना ली तो फिर ये जो हमें लूट रहे हैं ये सारे, फिर इनकी ये खपियां फपियां किधर जाएंगी हैं? इसलिए पुत्र, खुदा का वास्ता इस दफा न इस तरह करना। इस दफा पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए वोट दे। और मैं एक बात दुख से कहने लगा हूं, मेरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है, पाकिस्तान में मुस्लिम नून लीग वाले भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में पीपल पार्टी वाले भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में MQM वाले भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में ANP वाले भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में PTI वाले भी रह रहे हैं। पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं रह रहा। सबसे बड़ी मेरे पाकिस्तान की बदनसीबी हुणी हजरत, किसी लीडर ली मैं बोल छड़ा मिसबाई जे फैसलाबाद जाए तो जाए किवें हजरत। बदनसीबी हजरत कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं हजरत। नहीं हजरत, पाकिस्तान से प्यार करो हजरत, नहीं, पाकिस्तान से प्यार करो हजरत। वो पीछे खड़े सिपाही को कहा जाए बाबा बुला के ला। बाबा आ गया। वो जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाल के बाबे को कहता है, बाबा मुझ समेत सबको देख, मुझे सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख। वो बाबा भी मेरी तरह बाबा नहीं था कि हमें वाल सफेद कर लिए, नहीं, वो बाबा बाकायदा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था। उसने सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा मैंने बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। अब तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। अगर वो किसी की गोद में रुमाल रखता तो बादशाह बात आगे बढ़ाता, बात उत्थे ही खत्म हो गई। मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे और बादशाह बीमार हुआ, लेकिन बीमारी ऐसी कि किसी को समझ ही नहीं आई कि बीमारी क्या है। बड़ा दर्जी इलाज हो, जब बीमारी का नहीं पता तो इलाज क्या करना। हकीम तबीब तुक्के लगाते रहे, नहीं तुक्का लगा किसी। बादशाह दिन ब दिन मौत के करीब, दिन ब दिन मौत के करीब, बिल्कुल हड्डियों का ढेर रह गया बादशाह। तबीबों ने भी दवाइयां बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त बादशाह की हालत है ना, हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा। अब फैसला ये हुआ दिन जो 3 रह गए हैं, तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की आपस में आखिरी मुलाकात करवाओ। ठीक है, ऐलान करवा दिया गया, फलां दिन बादशाह की आखिरी मुलाकात। बादशाह को एक पलंग पे लेटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता और बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। अब लिखा जी उन्हीं मिलने वालों में ना सुर्ख रुमाल वाला बाबा भी आ गए। अब एक मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह को बाबा बीमारी की वजह से भूल चुका था, उसको नहीं याद हुई। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा,
बादशाह ने वालेकुम सलाम। बाबे ने पूछा बादशाह सलामत किधर की तैयारी है? जब बाबे ने तैयारी का नाम लिया ना तो बादशाह रो पड़ा, क्योंकि हम तो तैयारी को भूल चुके हैं। हम तो इस तरह रह रहे हैं कि कभी जाना ही नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम सुनो हमारे। अरे भाई ये तेरे मेरे प्रोग्राम है, वो जात की क्या मर्जी है, ना तू जाने ना मैं जाने। ये पहला रोजा तेरे और मेरे प्रोग्राम में, लेकिन उसकी मर्जी क्या है ना तुझे पता है ना मुझे पता। रमजान का पहला जुमा तेरे और मेरे प्रोग्राम में है, लेकिन उसकी मर्जी क्या है ना तुझे पता ना मुझे पता। ईद के प्रोग्राम तू और मैं अभी बैठे बना रहे हैं, ईद पे ये पहनना, लेकिन पता नहीं है जरा उठे तेरी मेरी ईद है भी कि नहीं है। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये हम तैयारी भूल चुके हैं। हमें देख के लगता ही नहीं कि हमने कभी जाना है। हम इस तरह अल्लाह महबूब ने फरमाया मुसाफिर की तरह रहे, मुसाफिर की तरह रहे। लेकिन हमने कौन सी मानी है? जिस जिस चीज से हजरत ने मना किया ना हम नहीं माना। का रहना जरूर, दिल ना लगाना, छोड़ना है, तंग होगा, नहीं मानी है। जिस जिस चीज से मना किया, फरमाया मुसाफिर है, मुसाफिरों की तरह रहे, दिल ना लगाना। जमीन तेरे पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे रखना। इस जमीन को इतनी औकात नहीं कि इसको उठा के तू दिल में ले आए। तेरा दिल बड़ी खास चीज है, अल्लाह रहेगा, अल्लाह का रसूल रहेगा। ये जमीन है इतने जोगी, अल्लाह ने पैरों के नीचे रखी है, पैरों के नीचे रखना। इसको दिल में ना लाना, अगर दिल में लाएगा तेरा नुकसान करेगी, तेरा कोई रिश्ता नहीं रहने देगी। रहने दिया ये मैं हजरत पीछे भी कह के आऊं, जब तक हजरत जमीन दिल में नहीं आती, ये सब की सुन लो, जब आ जाती है फिर तो आप भी देखते हैं। अभी जब तक जमीन दिल में अभी नहीं समझ होती जमीन जमून की कोई। मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने ये मंजर देखा हुआ है। 4 भरा 5 भरा काम ते निकलने लगे सवेरे इकट्ठे, तो मां सारे की कहती है ओ पुत्रा मौसम भी है ते मैं अज ना मूली कंडा कर लांगी, अज राती मूलियां दे पराठे, तेरा टाइम ना ला जी सारी, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखे मंजर बता रहा हूं। पहले बड़ा हो गया, मां की कहती है पुत्रा थके आए सुटते हैं परोठे। बड़ा की कहता भाई अम्मी की गल करने, वो वीरा बगैर की मजा परोठे खान का, थोड़ा जिहा ढीक लेना है, ढीकड़ी गल है। भी आते ने सारे भरा ते इकट्ठे खावांगे, इसी तरह रहना जी। ये मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूं जब अभी जमीन दिल में नहीं, अभी समझ नहीं जमीन जायदाद कितनी कोई। छोटा पहले आ गया, मां की कहती ओए पुत्रा थके आया है जे कहनी है तो परोठा सुट दें। छोटा की कहना ओए अम्मी जी की गल करदे ओ भाई तो बगैर को मजा नहीं खांदा, थोड़ा जिहा ढीक लेना भाई आंदे ने ते इकट्ठे खा। ये उस वक्त की बात है जब अभी जमीन दिल में, अभी दिल में भाई रह रहा है, अभी दिल में भाई की मोहब्बत है, अभी जमीन नहीं आई दिल में। लेकिन हजरत जी जिस दिन ये जमीन हम उठा के अपने दिल में ले आते हैं, फिर वही भाई जिसके बगैर पराठा नहीं खाया जाता था, फिर गांव में सबसे बुरा मुझे वही लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, पहले जमीन पैरों के नीचे होती है, फिर हम उसको उठा के अपने बेटा इसको दिल में ना लाना करें। पैरों के थल्ले पैरों के थल्ले ही रहेंगे, दिल में अल्लाह को रखना, अल्लाह के रसूल को रखना, इसकी ये जगह नहीं है। मकान में रहना, मकान को दिल में ना रख लेना। मकान में रहना, मकान को दिल में छोड़ना है। लेकिन हमने नहीं वाली, असी जिन्हों रख सकने हैं ना ही सारे ही रखे अंदर, लेकिन बस ना अल्लाह है ना अल्लाह के रसूल है। नहीं, मुसाफिरों की तरह रहो, सोना रहो। ये सारे झगड़े इसीलिए हैं कि हम दिल में ले आए इन चीजों, इनकी जगह दिल नहीं है, दिल उस साथ की जगह है। वो जब तैयारी की बात आई ना तो बाबा बादशाह रो पड़ा और कहता है बाबा जी बस एक सफर की तैयारी है। बाबा बोल के कहता है बादशाह
अगर सफर की तैयारी है तो सामान सफर किधर है? आगे तो तू सफर पे जाता है तो सारा शहर देखता है, तेरा प्रोटोकॉल होता है। आज कौन सा सफर है? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी आज सफर भी हो रहा है और सफर का सामान भी हो रहा है। बाबा फिर बोला, उसने कहा तू खुद ही कह रहा है कि सफर है और उसका सामान भी है, तो फिर वो किधर है? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला, जो सामान उस सफर पे लेके जाना था वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ। बाबे ने वो सुर्ख रुमाल निकाला, बादशाह को दिखा के याद करवा के कहता बादशाह याद आया, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, रुमाल उसकी गोद में रख। उस दिन तो ये रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह आज ये रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। इसको अल्लाह ने टाइम भी दिया, इसको अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र भी दी, सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी, लेकिन उसने फिर भी वो सामान इकट्ठा नहीं किया जो उस सफर पे लेके जा रहा है। ये मिसाल बयान करने के बाद मौलाना रूम फरमाते हैं बंदिया कि तुम भी बादशाह की तरह बेवकूफ़ी ना कर जाना, ये सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जो इस सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करे जो उस सफर पे लेके जाना है। इसलिए हजरत क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका है, मैं देख भी रहा हूँ कि थकन है, और तू मेरे जे मठे खतीब ने सुनना भी तो औखा कहा सौखा काम नहीं है। वो जो दूजे ने जरा जगा के भी रखते हैं नाल, मैं मठा खतीब हूँ। मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र अमल की तरफ आओ। आज समझ नहीं आ रही हमें, लेकिन उस दिन हमने रोना है हजरत जी, लेकिन तब रोने का कोई फायदा नहीं कि सारा सामान देखो ना, घड़ी छोड़ के जानी है, अंगूठी छोड़ के जानी। अगर आप कहोगे भी ना, मैं वसीयत कर दोगे कि अंगूठी मेरे नाल भेजियो, ये बाद वाले जान देंगे जी, बड़े जालिम जी बाद वाले। इधर मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा, इतने डाढ़े हैं बाद वाले इधर, स्पेशली फीमेल बड़ी देखी मैंने। डेथ के बाद जिसम फूल गया, उंगलियां सुज गई, अंगूठियां पाइया सन हजरत, अचानक मौत हुई, कोई उंगलों ते अंगूठियां कट कट लाइया हजरत। अगर तुम कहोगे भी ना, तो अगर बिल फर्ज तुम साथ ले भी जाते हो, मैं घड़ी ले जाऊं अंगूठी ले जाऊं, तो किस काम की इधर? ये थे वाला काम है इधर। पग छड़ के जानी, टोपी छड़ के जानी, वेस्टकोट छड़ के जानी, कपड़े छड़ के जाने, जेब विच मोबाइल छड़ के जा। बल्कि पुत्र सबसे सस्ती तरीन चीज इस वक्त मेरे पास मेरी जुराबें हैं, ये भी नहीं जानी। साथ फिर क्या जाना है? साथ जाएगी फजर, साथ जाएगी तहज्जुद, साथ जाएगा सुभान अल्लाह, साथ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, साथ जाएगा अल्लाहु अकबर, साथ जाएगी सूरह यासीन की तिलावत, साथ जाएगा सदका, साथ जाएगी खैरात, साथ जाएगा किरदार, साथ जाएगी सिला रहमी, साथ जाएगी वालिदैन की खिदमत। और मैं यही बात पे बात खत्म करता हूँ। मेरे मुर्शिद फरमाए बाबा रोज राती बह के तू अपना साफ कर, उथे तो होना ही होना ना साफ, पर तू रोज अपना साफ करया कर और चेक करया कर ओ किन्ना है जड़ा छड़ के जाना है और वो किन्ना है जड़ा। और मैं आपकी बात तो नहीं करता, अपनी करता हूँ। पता डंडी ना मारिए, सही सही हिसाब करिए ना, तो सारा कुछ ही होवे जड़ा छड़ के जाना है। कहाँ है हमारे पास तहज्जुद हजरत? कहाँ है हमारे पास कुरान पाक हजरत? कहाँ है हमारे पास तिलावत हजरत? कहाँ है हमारे पास किरदार? देखो कितना बड़ा भाई ओ हाथ खिलारो जिना कल अम्मी अबू दोए या दोया चो एक कह रहे खिलारो दर हाथ। स्टेज वाले ना खिलारियो, कोई स्टेज वाले थले रखो, माशाअल्लाह थले कर दो उन्होंने जी ओ हाथ खिलारो कि जेड़े रोज अम्मी या अबू दियां पिन्नियां ते मोंडे दबा के सौंदे ने। वेखिए जरा हूं सावला दुध ते पानी दा पानी, ये हालात है। तो पुत्र तुहाडा फिर इस महफल नूं सुनन दा की फायदा? की तुसीं इत्थों की मसले दा फायदा तुहानूं महफल सुनन आंदा जे तुसीं चले उन्हां नूं कुट भी नहीं सकदे हैं?
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ? ਸਾਲ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 52,000 ਫਿਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਗੂ ਔਖਾ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ फैसलाबाद च बह के, तेरे कार बह के तेरी मां और तेरे वालिद दी है शान ही महबूब फरमाते ने, एक बारी प्यार ना वेख मकबूल अज दा सवाब। हस के प्यार नाल वेख उन्होंने किन्ना जी मकबूल। सहाबा अलैहिम रिदवान ने उसकी थी महबूब एक दिन च एक बारी फरमाया, जिन्नी बारी वेखे उन्नी बारी। क्यों नहीं पुत्र करते है? मैं हज़रत जी हूं तो मैं सारे पीरां की गल नहीं करांगा जी, मैं अपने वर्गियां की करांगा। पीरां नूं पै गई मुरीदां की भुख। मैं अपने बजुर्गों को वेख्या, किसी ने मुरीद होना ना तो उन्हें कहना हज़रत मैं मुरीद होना है। फरमाना तेरी मां या प्यो है वे? उन्हें कहना फरमाना साढ़े गल की लैन आ गया, जा जाके उन्होंने खिदमत कर, वो साढ़े को बह रहा कर आके कदी कदी ना, बाकी उन्होंने खिदमत कर जा चले हो। उन्होंने खिदमत करो पुत्र, उन्होंने खिदमत करो। खुदा दी कसम है दुख आंदा वेख वेख। ये उम्मीद आनी है ना, जिंदियां नूं पुछदा कोई नहीं। फिर ईद वाले दिन की स्टेटस लगने ने, टुर गए यार मुहब्बतां वाले। तो चंगा होया टुर गए, चंगा होया जा टुर गए। ते तेरी जान नूं रोना सी बह के उत्थे। तेरे कोल किहड़ा टाइम है उन्हां लई? तू किहड़ा कदी को पुछिया सी आके अम्मी जी सारा दिन की कीता जे? अबू जी की कीता मेरे अबू ने सारा दिन? तू कदी आके को मुंडे घुट्टे सन प्यो दे? चंगा होया टुर गए। मैं तो हज़रत अब वैसे वक्त नहीं मिलता, मैं खत्म ते जावा ना, वो जो तुम फ्रूट ला के रखते हो, मुझे जहर चढ़ता फ्रूट वेख के। अपनी जिंदगी च बाबा तरसदा रहा, एक सेब नहीं किसी ने बाबे नूं कट के दिता, कुल ते सिर्फ लोकां नूं वहाण लई सारी मंडी खरीद के लैण दे। अपनी जिंदगी च माई तरसदी रही हज़रत, एक अंब नहीं किसी ने उन्होंने चीर के दिता, दसवें ते लोकां आगे दिखावा करने लई सारी मंडी चुक ले आणगे। रोंदे टुर गए आने दी जान नूं हज़रत। और याद रखना मेरे बच्चों मेरी बात, पुत्र 10 बोतलां ताकत वालियां, 10 टीके न्यूरो बयान दे, 10 टीके मैक्सिको वाल दे, एक पासे एक ओ सेब जिहड़ा तू अपने हाथ नाल कट के अपनी अम्मी ते अब्बू नूं खुआएगा, कल्ले सेब दी ताकत एक पासे। तेरे मां ते प्यो दा है ना खून वधेगा, तेरी मां और प्यो दा ऐना खून वधेगा, लेकिन तेरे को टाइम कोई नहीं कि तू एक सेब ही खुआए। मैं हज़रत मां है ना, दोनों का अपना अपना मकाम है, दोनों के अपने अपने रोल हैं हज़रत। वो अपना रोल प्ले कर रही है, वो अपना रोल प्ले, उसका अपना मकाम, उसका अपना मकाम। दोनों मेहनत करती हैं तो फिर औलाद जवान होती है हज़रत। लेकिन दुख ये है कि जैसे मैंने आगे कहा कुरान वाला मामला, ये भी मामला ऐसे तरह ही है हज़रत। अबू जी फारग, मां दी शान, सॉरी जी, मां दी शान। उलमा बैठे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। इस्लाम दीन मोहम्मदी क्या कह रहा है? शान बाप की ज्यादा शान। भाई वो बादशाह है घर का, चौकीदार नहीं, माली नहीं, बिल तारन वाला नहीं, सौदे ले आने वाला नहीं, पोतरे पोतरियां ढोने वाला नहीं, वो बादशाह है घर का, बादशाह। और अम्मी जी मलिका है। लेकिन क्या हुआ, अब्बा जी को हमने पता नहीं क्या बना दिया और अम्मी जी को हमने बादशाह बना दिया। क्यों भाई, गल गलत नहीं की जी? रिकॉर्डिंग वाले हो तुम, रिकॉर्डिंग करते हो प्रोग्राम दियां, गल गलत नहीं की? वो बादशाह है घर का,
लेकिन वो ना ही नहीं उसका कोई। और मैं कह रहा हूं, मैं बेटा ये नहीं कि मां का इनकार कर रहा हूं, अल्लाह की कसम है। देखो ना एडी ठंड में हजरत रिकॉर्डिंग वाले बैठे दे ने, सर्दी है हूं तो फिर सर्दी घट गई है, इन्होंने दिसंबर च भी रिकॉर्डिंग की क्यों इन्नी ठंड च ठरन डे है। मैं ते दिल की गल तुहानूं दसना, अल्लाह की कसम जी अपनी औलाद लई ठरन डे है। गल गलत तेरी भाजी की ना औलाद होए तो तुसीं भी किते सुते होना, मैं भी किते सुते होना, वो इन्हां लई ठरने आ असीं इन्हां लई ठरने आ। तुम उसका नाम ही नहीं लेते बेचारे का। मां की शान, मां की शान। शरीयत कहती है, दीन कहता है शान बाप की ज्यादा। सरबराह है घर का वो, बादशाह है घर का वो, मालिक है घर का वो। तेरी अम्मी मलिका है घर की, लेकिन सिर्फ मलिका 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 हो रहा है। उस बेचारे का नाम ही नहीं कुछ है, उसका नाम ही नहीं। और इतना बड़ा कलेजा होता बाप का। मैं हजरत, मेरे इलाके में कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मुझे चढ़ाने के लिए ना, मुझे छेड़ने के लिए, वो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है ये मेरी मां की दुआ है। पहले मुझे गुस्सा आता था, मुझे भी नहीं आता, मैं कह कोई नहीं यार, इनकी तरबियत की जरूरत है, बस इनकी तरबियत का, सिर्फ मुझे छेड़ने के लिए, कि गाड़ी के पीछे सिर्फ मुझे छेड़ने के लिए मां की दुआ लिखवाया हुआ है। मैं दावा कर रहा हूं बेटा, ना मैंने सुना गाड़ी के पीछे क्या लिखा होता है, ये मेरी। अल्लाह दुआ बाप भी करता है दुआ। ये उलमा बैठे हुए हैं, इमाम साहबान भी लाजमी हजरत बैठे होंगे। आपको क्या पुत्र जो तुहाडे इम्तिहान आंदे ने, तुहाडा अब्बा मौलवी साहब दे कन्न खा मारदा है, हजरत दुआ करियो इम्तिहान जी। लेकिन गाड़ी के पीछे सिर्फ क्या है, मां की, बाप की दुआ किसी को नहीं याद, बाप की कमाई किसी को नहीं याद, बाप का मई किसी को नहीं याद, बाप का जून किसी को नहीं याद, बाप की जुलाई किसी को नहीं याद, बाप की अगस्त किसी को नहीं याद, बाप की दिसंबर की सर्दी किसी को नहीं याद, बाप को जनवरी और फरवरी का धुंध में निकलना नहीं किसी को याद। हजरत गाड़ी पे क्या लिखा है, ये मेरी। मैं हजरत आज तक नहीं जे सुनिया, नहीं जे वेख्या कि कभी किसी बाप ने फड्डा डाला हो। फीसा मैं, यूनिफॉर्म मैं, बस्ते मैं, किताबां मैं, एडमिशन फीस मैं, पॉकेट मनी मैं, ईद मैं, ईद दे कपड़े मैं, खाला दी शादी दे कपड़े मैं, मामे दी शादी दे कपड़े मैं। गड्डी पीछे मेरा ना ही कोई नहीं बैठा गड्डी थे। इतना बड़ा दिल होता है, कहता अच्छा चल मां ना प्यार करता कोई नहीं, जिवें है खुश। हजरत मैं कोई, अल्लाह मुझे माफ करे हजरत, मैं कोई मां की तौहीन नहीं, मैं तुम जो है वो है बेटा। हजरत जी तुहानू पता बीबियां दे एडे एडे दिल हुंदे ने, बीबियां दे। आज सिर्फ गड्डी पीछे लिखा के वेखो, हाँ ये मेरे बाप की कमाई से है। जे पुत्र तेरी मां बह गई मिसवाई दा नाम बदल छड़ी, लहा के वेख, जे उस वेले फड्डा ना पिया। तुम बातें करते हो बाप को, तुम्हें क्या पता बाप क्या होता है। कई हजार बार मरता है वो, इतना तुमसे प्यार करता है। कई बार तुम्हारे लिए रब नाराज करता है, कई बार तुम्हारे लिए रसूल पाक को नाराज कर देता। मेरी औलाद, मैं बेटा मां का इनकार ये ना समझो मैं बाप को मां की जिद में लाके बयान कर, जिद नहीं है, उसका अपना मकाम है, बाप का अपना मकाम है। कई बार अल्लाह को नाराज करता है तेरे लिए बेटा, और तुझे इतनी तौफीक भी नहीं कि तू गाड़ी के पीछे इसका नाम ही लिखवा ले। ना पुत्र, बड़ी खिदमत करना अपनी मां की भी और अपने बाप की भी। शान बाप की ज्यादा, हक मां का ज्यादा। शान बाप की ज्यादा, हक मां बड़ा। और मेरे मुआशरे में बड़ा मजलूम है बाप। हजरत जी मैनू पता है साडे बुढ़े बाबे किवें टाइम लगाउण डे, कदी चाह दी दुकान ते, कदी किते कदी किते कदी किते कदी किते। नहीं बेटा इन्हां बाबियां दी कदर करो,
تجھے جوان کرنے کے پیچھے اس کی ساری زندگی ہے. میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں حضرت میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا نا اس نے بڑا سکھایا مجھے حضرت. بڑا ڈرتا ہے ذرا جنہوں پنجابی سکھائیں گے چکدا ہے لیکن چھوٹا چھوٹا ہے حضرت. اب جب گھر جاؤں گا اللہ خیریت سے لے جائے انہیں نہیں کوئی گل گل اور کرنی ہے انہیں اتوں پھڑنا سیدھا ہی بابا گھوڑا اللہ نہ برا وقت لے پتر سر لوہا چھڑا گا تھلے نہیں ہوں وقت یہ. لیکن وہ کیا ہے چپ کر کے. اور اللہ آپ صرف دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو سارا کچھ یاد ہے نا ڈاکٹر سلیمان یہ لیکن کیا کچھ بھی نہیں ہے چپ کر کے تلے ہو جاتا. یاد رکھنا بڑے ہو کہ بیٹا کیوں کسی دور میں تیرا گھوڑا بھی رہا ہے جڑا کسے اگے نہیں نیواں ہوندا جڑا کسے اگے نیواں نہیں چپ کر کے نیواں ہوندا ہی تے تینوں کنڈ تے بٹھا لیندا ہوندا. وہ تیرا گھوڑا بھی تھا کسی دور میں تجھے یاد ہی کچھ نہیں تجھے سارا کچھ ہی بھول گیا. جب تو پیدا ہوا تھا کتنے شوق اور فخر سے تجھے اٹھا کے باہر لے کے جایا کر میرا بیٹا ہے تجھے سارا کچھ ہی بھول گیا. ظالم آدمی کچھ ادھر سے بھی ڈنڈیاں بجی ہم نے بھی نہیں تمہیں یاد کروایا کہ نہیں بیٹا وہ بھی میرا پتر صرف امی جی نہیں ابو جی بھی نے ہم نے بھی نہیں کروایا. ہم نے بھی کسی کو نہیں روکا ہم نے بھی کسی کو نہیں کہا بیٹا آدھا نہ بولو پورا بولو ابو جی بھی ہیں. اس لیے پتر قدر کریو جدے جدے کول بھی ہے نے. اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. باتیں بڑی پھر انشاءاللہ کبھی اللہ وقت لائے تو انشاءاللہ کریں گے. آپ سارے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ. اور پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دیں گے نا انشاءاللہ. امی ابو کی خدمت کریں گے نا وما علینا الا البلاغ المبین.